Hello everyone, welcome back to weekly webinar from Training Stations of Rajlakshmi Solutions Private Limited. Thank you so much for joining us today's session. And I'm Sampada from Rajlakshmi Solutions Private Limited. Basically, we are into 4 different sectors. That is first Tally, an accounting software. Second, ESAP, key of every business solution. Third, Bitrix 24, that is CRM, and fourth one, Skill India, that is education of children. And coming to the topic, today's topic is budget and control in a Tally Prime. So speakers are here. Miss Priyanka, are you here? Yes, hello. Yeah, welcome. Hello. Priyanka, welcome. Yes, thank you, welcome. Yeah. Second. Mr. Krishna, are you here? Yes, ma'am. I am here. Yes. Yes, welcome. And third, the host person, Mr. Bhagwati ji, are you here? Yes, Miss Namda. Thank you very much. Thank you, sir. And now over to you, Miss Priyanka. You can start your presentation. Please. Yes, ma'am. Thank you. Thank you. Hello. Good evening, everyone. Welcome to Rajlakshmi Solutions Private Limited. Myself, Miss Priyanka Prajapati, and today I will give the presentation of Tally Prime feature, that is budget and control. Here is a family of Rajlakshmi Solutions. So I request to please share the screen. Please share the screen. Our today topic is budget and control in Tally Prime. Next slide, please. A business budget is spending plan for your business based on your income and expenses. बजट हमें हेल्प करता है कि हमको बिजनेस प्लान में कितना स्पेंड करना चाहिए और हमें कितना इनकम आने वाला है एंड कितना एक्सपेंसेस होगा. As well as budget in Tally Prime help you to compare the actual financial performance business figure. We move to the next slide and we will discuss types of budget. Tally Prime में हम different budget maintain कर सकते हैं. Budgets like administrative expenditure budget या फिर fixed and flexible budget, debtors budget, rolling budget, cash budget, selling and distribution budget, capital expenditure budget, purchase and sales budget, labor budget, production cost budget, and many more budget we can maintain in Tally Prime. So in our next slide, we will discuss budget for different accounts in Tally Prime. First one is budget for individual ledgers. Individual ledgers के लिए जब हम budget का ऑप्शन enable करते हैं तो अकाउंट्स इन्फो में क्रिएट बजट का ऑप्शन अब बजट फॉर कॉस्ट सेंटर. यू कैन क्रिएट मल्टीपल बजट इन टैली प्राइम ईच फॉर स्पेसिफिक पर्पस. इफ द कॉस्ट सेंटर्स आर इनेबल्ड फॉर द कंपनी देन बजट कैन बी क्रिएटेड फॉर द कॉस्ट सेंटर. नेक्स्ट इज बजट फॉर ग्रुप. यू कैन क्रिएट बजट फॉर ग्रुप लाइक एक्सपेंसेस, सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स एंड मेनी मोर. वी मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड एंड डिस्कस बजट वेरिएंस इन टैली प्राइम. तो यहाँ हम देखेंगे टैली प्राइम में बजट वेरिएंस कैसे होता है. बजट वेरिएंस रिपोर्ट्स बी व्यू फ्रॉम ट्रायल बैलेंस, ग्रुप समरी एंड मंथली समरी. बजट वेरिएंस में आप ट्रायल बैलेंस, ग्रुप समरी एंड मंथली समरी में रिपोर्ट्स व्यू कर सकते हो. बजट वेरिएंस इज एक्टिव इफ द ऑप्शन मेंटेन बजट एंड कंट्रोल इज इन अकाउंट फीचर्स. So coming to our next point, create budget. In a Tally Prime, you can create a budget for group, ledger account and cost centers. Alter budget, modify as the field required in the period or change budget of group, ledger and cost center. हम budget field में को modify कर सकते हैं as per our requirement. हम period change कर सकते हैं as well as budget के group, लेजर और कॉस्ट सेंटर्स में भी चेंजेस कर सकते हैं. डिलीट अ बजट. You can delete the particular budget which is not required.
So we move to the next and discuss advantage of budget and control. That is definite planning. Budgets are based on the well-defined plan. Budget enables the different heads to know what is expected of them. Enhance efficiency. Budgeting is an effective way of controlling costs and eliminate wastage. Increase financial clout and performance. With the help of budgeting process, management can also learn from the past experience. Next is maximization of profit. Maximization profit के through हम different functions undertake कर सकते हैं जो हमें maximum profit देगा with the help of budget. Delegations of budgeting encourages delegations of authority. It fixes the limit within which delegated authority can be used. So these are basic details of budget and control. So now and from my side, I request to Mr. Krishna to please proceed further. Thank you so much, everyone. Yes. Thank you, Priyanka. Very nice presentation. First off, Thank good you. evening all. Hello everyone. Welcome to Rajlakshmi Solutions Private Limited. Before going to start the practical session, I want to introduce myself. My name is Krishna Rane from Rajlakshmi Solutions Private Limited. Let's start the practical session. We are going to cover how to set budget in Tally Prime. तो यहाँ पे आप देख सकते हो हम Tally Prime में कैसे बजट सेट करेंगे. मैं यहाँ पे आपको स्क्रीन शेयर कर देता हूँ. Yes, screen is visible. Yes, loading. Yes. यस. तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने कुछ बजट यहाँ पे सेट किया है फाइनेंशियल ईयर 2021 का. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉर्पोरेट बजट, न्यू कॉर्पोरेट बजट और ऑफिस बजट, ये मैंने तीनों बजट यहाँ पे सेट किए और उसका जो भी है अमाउंट्स का यहाँ पे लिमिटेशन यहाँ पे दे चुका. तो देखो इसके अंदर दो तरह का सिस्टम है बजट को मेंटेन करने का. आप क्लोजिंग बैलेंस के ऊपर भी मेंटेन कर सकते हैं या फिर नेट ट्रांजेक्शन के ऊपर भी मेंटेन कर सकते हैं. तो मैं अभी आपको क्लोजिंग बैलेंस के ऊपर यहाँ पे बता रहा हूँ. जब आप क्लोजिंग बैलेंस को समझ जाओगे तो आप नेट ट्रांजेक्शन का खुद ही कर लोगे क्योंकि ये ज़्यादा टफ है ही नहीं, बहुत ही इजी है. सो आप यहाँ से बजट क्रिएट और मेंटेन भी कर सकते हो टैली प्राइम के अंदर. तो यहाँ पे आप देख सकते हो तीन टाइप का बजट हमने यहाँ पे सेट किया है. कॉर्पोरेट बजट, न्यू कॉर्पोरेट बजट और ऑफिस बजट. कॉर्पोरेट बजट में हमने सेट कर रखा है 40,000 हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस पे खर्चा करते हैं. जैसे अब इनडायरेक्ट में भी कुछ भी हो सकता है. ऑफिस एक्सपेंस है, टेलीफोन एक्सपेंसेस है, मेडिकल एक्सपेंसेस है, कन्वेंस एक्सपेंस है, हर एक चीज़. तो उसके बाद न्यू कॉर्पोरेट बजट में क्या है 20,000 का आपने यहाँ पे लिमिट सेट किया. हमने पहले सेट किया 40,000 का, उसमें 40,000 का बजट में हमें कॉर्पोरेट बजट में रखा. फिर उसके बाद 20,000 का. उसके बाद ऑफिस बजट की हम बात करेंगे तो ऑफिस एक्सपेंस से हमने बजट रखा है जो भी हम लेजर के ऊपर बजट बना रहे हैं. तो यहाँ पे ध्यान दो, कॉर्पोरेट बजट में हम ग्रुप के ऊपर बजट बना रहे हैं, न्यू कॉर्पोरेट के ऊपर भी ग्रुप के ऊपर बजट बना रहे हैं. Excuse me, Krishna. Hello, Krishna, your screen is not visible. Actually, maintain budget and closing balance is visible. Tally screen is not. Yes, sir. I will, sir. Actually, Tally Prime screen, next window. Yeah, you open the Tally Prime screen. What? Okay, you share the Tally Prime screen. No problem, Mr. Bhagwati. He is explaining theoretical and he will come back to the demo. It's okay, no problem. Okay, thank you. Yeah, please proceed Yes, ahead, yes, Mr. sir. Krishna. तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो भी है मैंने ऑफिस बजट का वो लेजर के ऊपर बजट बना रहा है. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लेजर के ऊपर किस तरीके से हम बजट सेट कर सकते हैं. तो हम लाइव डेमो यहाँ पे टैली प्राइम में देखते हैं. तो यहाँ पे मैं अभी टैली प्राइम का विंडो शो कर रहा हूँ. यस, इज स्क्रीन इज विजिबल. Yes. यस सर. तो यहाँ पे आप देख सकते हो एबीसी प्राइवेट लिमिटेड के नाम से मैंने कंपनी क्रिएट की है. तो सबसे पहले हमें ऑन करना है बजट के फीचर्स को. तो यहाँ पे आप देख सकते हो ERP 9 में कैसे होता था, AP11 फीचर्स में जाके हमको बजट का ऑप्शन ऑन करना पड़ता था. लेकिन हम यहाँ पे अभी देख सकते हैं क्रिएट में जाके जैसे मैं शो मोर पे बटन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मुझे बजट का ऑप्शन यहाँ पे शो हो जाता है. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं पहले बजट कैसे हम बनाएंगे. तो यहाँ पे मैं बजट में जाता हूँ. तो कुछ बजट्स मैंने यहाँ पे पहले से क्रिएट किए हैं, वो अभी मैंने आपको अल्टर करके दिखा.
तो जैसे मैंने आपको स्क्रीन शो किया था, कॉर्पोरेट बजट, न्यू कॉर्पोरेट बजट और ऑफिस बजट हमने फाइनेंशियल ईयर 2021 में बनाया था। तो कॉर्पोरेट बजट में एग्जैक्टली होता है क्या? तो कॉर्पोरेट बजट का हम बजट यहाँ पे बनाएंगे। पीरियड है जो 1 अप्रैल से 31 मार्च 21 तक हम यहाँ पे पीरियड सेट करेंगे। अंडर रखना है प्राइमरी। नेक्स्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं ग्रुप मेरा होगा, यहाँ पे मैं यस करूंगा। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस पे जैसे मैंने आपको बोला, मैं ग्रुप के ऊपर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर यहाँ पे मैं सेट करूंगा। ऑन क्लोजिंग बैलेंस हमने लिमिट सेट किया था 40,000 का। तो यहाँ पे जो 40,000 लिमिट हमने सेट किया वो यहाँ पे आपको अमाउंट डालना है। नेक्स्ट हम देखते हैं न्यू कॉर्पोरेट बजट। यहाँ पे अंडर लेना है प्राइमरी। पीरियड्स जो है फाइनेंशियल ईयर का वही सेम यहाँ पे आपको एज इट इज डालना है। नेक्स्ट यहाँ पे हम ग्रुप पे यस करेंगे। सेम यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस पे आपको लेना है ऑन क्लोजिंग बैलेंस। तो यहाँ पे मैंने जैसे आपको बोला था नेट ट्रांजेक्शन के ऊपर भी आप रख सकते हैं और बजट क्लोजिंग बैलेंस के ऊपर भी मेंटेन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं फिलहाल क्लोजिंग बैलेंस के ऊपर बता रहा हूँ। नेक्स्ट हम देखते हैं ऑफिस बजट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पहला ऑफिस बजट हमने एक ग्रुप बनाया था, एक बजट बनाया था। तो ऑफिस बजट में हम क्या करने वाले, लेजर के ऊपर हम बजट सेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं यस करूंगा। ग्रुप में सेम पीरियड एटीट्यूड डाल दूंगा। अंडर प्राइमरी लेना है। तो यहाँ पे मैं जो ग्रुप में अभी यहाँ पे ले रहा हूँ, जो ग्रुप में बना रहा हूँ, ऑफिस एक्सपेंसेस, टेलीफोन एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस के नाम से यहाँ पे सेट करूंगा। यहाँ पे ऑन क्लोजिंग बैलेंस ही रखना है। जो अमाउंट हमने यहाँ पे सेट की थी budget में, सेम वही अमाउंट यहाँ पे डिफाइन करना है। दैट इज हमने किए थे सेट 15,000, 8,000 और 5,000 एज इट इज। इसको सेव करना है। तो ये हो गया मेरा बजट। यहाँ पे मैंने बजट सेट कर दिया। नेक्स्ट हम कुछ पेमेंट की एंट्री पास करेंगे, लेकिन जैसे मैंने आपको यहाँ पे बोला था लेजर के ऊपर हम ऑफिस बजट बना रहे हैं। तो यहाँ पे मैं जाऊंगा अल्टर में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने कुछ लेजर्स क्रिएट किए हैं, जैसे ऑफिस एक्सपेंस है, अदर एक्सपेंसेस है और टेलीफोन एक्सपेंसेस। जो भी हमने यहाँ पे ग्रुप बनाया, अभी जैसे ऑफिस एक्सपेंसेस का हमने ग्रुप बनाया था अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो सेम एज इट इज इसको ऑफिस एक्सपेंस के अंडर लेना है और सेव करना है। नेक्स्ट अदर एक्सपेंसेस है, सेम वैसा ही करना है। अदर एक्सपेंसेस अंडर आ गया अदर एक्सपेंसेस में। नेक्स्ट टेलीफोन एक्सपेंसेस अंडर आएगा अंडर टेलीफोन एक्सपेंसेस। तो यहाँ पे मैंने लेजर के ऊपर जो भी है मेरा बजट सेट कर दिया। तो कुछ पेमेंट्स का एंट्री में यहाँ पे पास करता हूँ। तो ऑलरेडी मैंने पास की है, मैं आपको डिस्प्ले कर देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो ऑफिस एक्सपेंसेस का, टेलीफोन एक्सपेंसेस का और अदर एक्सपेंसेस का। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कुछ लिमिट्स हमने पहले सेट किए थे, फिर मैं एक बार उसको इंशो आपको कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पहले जो कॉर्पोरेट बजट में हमने लिया था इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस में 40,000 का बजट, न्यू कॉर्पोरेट बजट में लिया था 20,000 का और ऑफिस बजट में लिया था ऑफिस एक्सपेंसेस के लेजर के ऊपर 15,000, टेलीफोन एक्सपेंसेस का लेजर 8,000 और अदर एक्सपेंसेस का 5,000। तो यहाँ पे मैं एक बार फिर एंट्री में आपको हाईलाइट कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑफिस एक्सपेंसेस मैंने रखा था 15,000 का लिमिट, एक्चुअल मेरा हुआ 16,000 का। तो मैं 16,000 के हिसाब से मैं एंट्री यहाँ पे अभी पास कर देता हूँ और इसको सेव कर देता हूँ। नेक्स्ट हम देखेंगे टेलीफोन एक्सपेंसेस, जो कि मैंने यहाँ पे बजट में लिया था 8,000, लेकिन टेलीफोन एक्सपेंसेस का मेरा एक्चुअल खर्चा हुआ है 5,000 का। तो इसको मैं सेव कर देता हूँ। अदर एक्सपेंसेस का सेम अकाउंट्स कैश में लेता हूँ। अदर एक्सपेंसेस में उसको लिमिट सेट किया था 5,000 का, लेकिन एक्चुअल हुआ कितना 4,000। तो ये एंट्री में सेव कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने लिमिट सेट किया था 16,000 का, 5,000 का, 4,000 का, लेकिन एक्चुअल में हुआ कितना वो मुझे यहाँ पे रिपोर्ट्स में देखना है।
तो फर्स्ट हम आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो जो भी मैंने पेमेंट का एंट्रीज किया था यहाँ पे मुझे प्रॉपर शो हो रहा है। तो हमें जाना है बजट का रिपोर्ट देखने के लिए, तो जाएंगे डिस्प्ले में, ट्रायल बैलेंस, और यहाँ पे बजट वेरिएंस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉर्पोरेट बजट, न्यू कॉर्पोरेट बजट और ऑफिस बजट, मुझे तीनों बजट यहाँ पे शो हो रहा है। जैसे मैं एंटर करूंगा कॉर्पोरेट बजट, यहाँ पे आप देख सकते हो एक्चुअल मैंने सेट किया था 40,000, लेकिन मेरा हुआ 25,000। तो यहाँ पे आपको रिपोर्ट्स में दिख रहा है 37.5% आपका यहाँ पे सेविंग हुआ है, मतलब जो आपने बजट सेट किया था उसके ऊपर 15,000 का आपका यहाँ पे सेविंग हुआ है। तो नेक्स्ट ईयर का फाइनेंशियल का जो बजट बनाएंगे तो 15,000 से कम ही बनाएंगे। नेक्स्ट बजट हम देखते हैं, यहाँ पे सेम F10 पे जाना है, दैट इज बजट वेरिएंस। यहाँ पे न्यू कॉर्पोरेट बजट एंटर करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख सकते हैं 20,000 का लिमिट मैंने यहाँ पे सेट किया था, एक्चुअल में हुआ कितना 25,000। तो यहाँ पे मुझे पता चला है मेरा 5,000 से खर्चा ज़्यादा हुआ, एक्सपेंसेस ज़्यादा हुआ। तो मैं जब भी नेक्स्ट बजट बनाऊंगा मेरा यहाँ पे 5,000 के हिसाब से ज़्यादा ही बनाऊंगा। 25% से यहाँ पे ज़्यादा हुआ है, मतलब टोटल 125% आपका एक्सपेंसेस यहाँ पे ज़्यादा हुआ। नेक्स्ट हम देखेंगे ऑफिस बजट। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, यहाँ पे हमने लेजर के ऊपर बजट बनाया था। जैसे मैं एंटर करूंगा यहाँ पे आपको तीनों एक्सपेंसेस के लेजर शो हो रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने एक्चुअल लिमिट कितना सेट किया था बजट में, 15,000, 5,000 और 8,000, दैट इज ऑफिस एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस और टेलीफोन एक्सपेंसेस। लेकिन एक्चुअल हुआ कितना मेरा 15,000 मैंने ऑफिस में सेट किया था, लेकिन हुआ 16,000। तो जो है मेरा 1,000 का यहाँ पे एक्स्ट्रा खर्चा हुआ, दैट इज 6.6% में आगे बजट बनाते समय ज़्यादा से बनाऊंगा। ऑफिस एक्सपेंसेस के अदर एक्सपेंसेस की बात करूँ तो मेरा 4,000 यहाँ पे एक्चुअल में हुआ है, लेकिन मैंने बजट सेट किया था 5,000 का। तो यहाँ पे मेरा 20% से प्रॉफिट हो गया, डेट इज 1,000 मेरे यहाँ पे सेव हो चुके हैं। टेलीफोन एक्सपेंसेस की बात करूँ तो 8,000 का मैंने लिमिट सेट किया था बजट में, लेकिन क्लोजिंग बैलेंस मेरा है 5,000, दैट इज अभी जो एंट्री हमने पास किया 5,000 का, तो एक्चुअल मेरा हुआ कितना 5,000 यहाँ पे एक्सपेंसेस हुआ, मेरा 3,000 यहाँ पे सेविंग हो चुका है। तो 37% से जो भी मैं नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर बजट बनाऊंगा तो यहाँ पे 37% से कम से बनाऊंगा। तो ये हुआ प्रॉपर बजट। अब हम बजट को अल्टर और डिलीट कैसे कर सकते हैं, तो सेम आपको कुछ नहीं करना है, एस्केप करके हम बाहर आएंगे, अल्टर में जाएंगे, जस्ट यहाँ पे बजट पे जाना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो भी है नेम यहाँ पे जो हमने जैसे डाला था, डिफाइन किया था स्टार्ट समय, तो सेम यहाँ पे अल्ट डी प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपका बजट डिलीट हो जाएगा। और अल्टर भी कर सकते हैं, तो यहाँ पे सेट अल्टर बजट का ऑप्शन यहाँ पे एक्चुअल में दिया है। तो यही है, बहुत ही इजी फंक्शन है यहाँ पे टैली में बजट्स का। आप उसको मेंटेन करके आपका जो भी है बिजनेस का टारगेट और गोल्स यहाँ पे अचीव कर सकते हो। इट्स डन फ्रॉम माय साइड, दीपा मैम, थैंक यू। Thank you Krishna. It was pleasure having the details here. मैं एक छोटी सी चीज यहाँ जरूर बताना चाहती हूँ ऑडियंस के लिए और स्पेक्टेटर्स के लिए। Like previously we had a presentation by Miss Priyanka and then Krishna ने आपको एक theoretical knowledge के लिए उन्होंने अलग से एक डिजाइन आपके लिए बना के उन्होंने दिखा दिया, and now हमने आपको डेमो दिखाया exactly टैली में बजटिंग होता क्या है। So altogether, budget really matters for any kind of individual or for any kind of organization. So every organization has to plan your budget accordingly such that your work just flows like a water and ends up with a smoothened way. So this is the very, very important thing, because budget always designs a project and as well as identifies the productivity or the profitability of any organization. So request everyone to take the right advantage of this particular feature. अगर आप देखोगे तो टैली पे ऐसे बहुत ज़्यादा और भी हिडन फीचर्स है which really people don't know. So that's the reason आज हम यहाँ पे आपको ये सारी details दिखा रहे हैं, and we always show you in all the webinars the details, what are the different features of Tally and what are the
advantages of those particular features. So today we are on to a very beautiful and wonderful, a productive topic, that is budget and control in Tally Prime. Okay, जैसे मैंने Tally Prime बोला, really one thing just like popped out onto my mind, that is request everyone to please convert your Tally ERP9 to Tally Prime software, क्योंकि अब आगे जो भी फीचर्स आने वाली है that is completely going to depend on Tally Prime, and the conversation of Tally Prime is still in process. बहुत सारे लोग अभी तक कन्वर्ट नहीं हुए हैं. That is the reason in every webinar we are trying to like convey this message that आगे जो भी features आने वाला है, that features is going to completely depend on Tally Prime. So request you to please convert yourself. अगर आपको conversation में कहीं पे भी कोई भी दिक्कत आई, request you to please connect us. We have many different forms of like conversation plan here. So जरूर हम आपको support कर देंगे, आपको Tally ERP9 से Tally Prime में smoothly convert होने के लिए. So now let us discuss much more information onto this budget and control in Tally Prime. So there is a resource person here आपको additional add-on देने के लिए. So I request Mr. Bhagwati to please take on the session now. Request you to please add on the overviews onto today's topics. It's over to you, Mr. Bhagwati. Thank you, Deepa. Thank you very much. So, hi, good evening, everyone. I am Bhagwati Dhandaria from Rajya Lakshmi Solutions Private Limited. Yeah, budget and control. This topic is very important for any organizations to understand the scenario, understand the situation of the business, and day-to-day the monitoring. Okay. Mostly businesses, we are in the SME, normally we are using Tally, but we are not aware about many of the people are not aware about the feature of the Tally and capability of the Tally. So that's why we plan that budget and control is very important for every of the organization. In last 1.5 years, mostly people are very strict on this particular things, budgeting things. Okay. So that's why we take this topic, and many of the customers also demand this topic, how they resolve the issues, how they identify the scenario, and how they identify the control these expenses and other stuffs, how they can monitor day to day. So this is a very important of any of the organization. In the normal case, we are doing the expenses, day to day expenses we are doing. We are not monitoring, we have not any alert also कि हमें कहाँ अपने आप को सेव करना है, कहाँ हमें अपने आप को कंट्रोल करना है, कहाँ हमने ये चीज़ों को हमने एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस कर दिए हैं, हमारा कौन सी जगह हमने बजट ज़्यादा डिफाइन कर दिया था, कहाँ पर हमने पैसे नहीं डालने थे, कहाँ हमने पैसे डालने थे. ये चीज़ों को हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं अगर हमारे पास कहीं भी कोई टूल्स अगर प्रॉपर नहीं है. बट एवरीवन इज यूजिंग Tally Prime, एंड Tally Prime में सबसे अच्छी चीज़ है पूरा फाइनेंशियल डेटा, पूरा इन्वेंटरी डेटा, पूरा पेरोल का डेटा, एवरी डेटा को रिलेटेड टू द फाइनेंस ऑल्सो, दिस ऑलरेडी अवेलेबल इन द Tally Prime. तो हमें कहीं बाहर नहीं जाना है, हमें अपना जो Tally Prime करंट जो चल रहा है सिर्फ उसमें ही वो इनेबल करना है. एंड वी स्टार्ट विद इन आवर्स एंड 2 hours, मोस्टली आवर्स 2 hours इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यू हैव टू डिफाइन द बजट. आई एम प्लानिंग द बजट ऑफ द एवरी ग्रुप, एवरी विलेजर्स और एवरी कॉस्ट सेंटर. सो आप एक्सपेंस ग्रुप के ऊपर आपने 5 लाख रुपए का बजट रखा है. यू कैन डू द कंपेरिजन ऑल्सो कि लास्ट ईयर मैंने 5 लाख एक्सपेंस करा था. वी वांट टू एनालाइज दैट डेटा कि वो 5 लाख मैंने ज़्यादा कर दिया था, मुझे शायद लगता है कि इस बार मुझे 4 लाख का बजट करना चाहिए. और कहीं मार्केटिंग एक्सपेंसेस में मैंने शायद 4 लाख डाले थे, मुझे लगता है अगर मार्केटिंग एक्सपेंसेस मुझे करने से मेरा बेनिफिट ज़्यादा हो रहा है तो मुझे यहाँ वो एक्सपेंसेस का जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस का जो बजट था एक्स्ट्रा वो उठा करके इधर मुझे डाल देना चाहिए ताकि मेरा मार्केट प्रमोशन ज़्यादा बढ़ जावे. क्योंकि अभी मार्केट डिजिटल सिनारियो का आ गया, डिजिटल ऑनलाइन मार्केटिंग है सब कुछ, तो हमें ऑनलाइन मार्केटिंग, डिजिटल सिनारियो, ऑनलाइन स्टोर एंड एवरीथिंग्स में हमें इन्वेस्ट करना है. तो वी कैन इन्वेस्ट इन दैट थिंग्स. सो वी कैन डिफाइन द बजट विथ द डे टू डे, okay, period wise. So every time you can monitor that things कि इस मंथ में मैंने अगर डिफाइन किया था पर्टिकुलर अकाउंट्स, पर्टिकुलर ग्रुप्स एंड लेजर्स पे या पर्टिकुलर कोई कॉस्ट सेंटर पे,
तो वो क्या उसका वेरिएंस है। अगर मेरा इस महीने ज़्यादा हुआ है तो डेफिनेटली आई विल कंट्रोल माई सेल्फ एंड आई रिड्यूस माई एक्सपेंसेस इन पर्टिकुलर सिनारियो एंड पर्टिकुलर लेजर पर्टिकुलर एक्सपेंसेस इन द नेक्स्ट मंथ। आई विल कंट्रोल आवर बजट। ओके, सो अल्टीमेटली जो हम एकदम फ्री हैंड जो काम कर रहे हैं, जहाँ हमें कहीं भी कोई वेरिएंस हमें पता नहीं लग रहा है, कहीं हमारे पास जब तक हमें पता नहीं लगेगा किस वेरिएंस में हमारा ज़्यादा एक्सपेंसेस जा रहा है, तो वी कांट कंट्रोल आवर सेल्फ एंड इसके कारण हमारा कहीं ना कहीं एक्सपेंसेस काफ़ी हाई चले जाते हैं और दे आर डाउन द आवर प्रॉफिट, डिक्रीज द आवर प्रॉफिट। तो एक्चुअली दिस इज अ बिग लीकेज ऑफ द एनी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस। तो मैं आप सबको ये बात जरूर बोलूंगा कि वंस यू चेक द बजट फीचर एंड यू इम्प्लीमेंट दैट फीचर्स in terms of the group, in terms of the ledger, you are using a cost center, so you can do the cost center. Cost center मतलब एक थोड़ा सा एग्जांपल दे देता हूँ। अगर आपके पास मल्टीपल ब्रांचेस हैं तो आप मल्टीपल ब्रांचेस का बजट भी आप कॉस्ट सेंटर के थ्रू डिफाइन कर सकते हैं। मल्टीपल लोकेशन से, मल्टीपल लेजर के अंदर में मल्टीपल डिफाइंड लेजर सब लेजर्स हैं, तो एवरीथिंग यू कैन डिफाइन पीरियड वाइज and you can control and check the variance and monitor the variance period wise, and you can make a right decision at the right time. So you can make much more profit to use these tools and use this feature in your organizations. So this is always beneficial. So work on it and use these features. If you need any type of training and support, you can contact with our account manager. They are already coordinating with you, Rajlakshmi. And if you want to connect with the support center, my support center Hydrax number is also in the chat board, and you can also check with me. My number is also populated in the chat board, and various type of the videos, various type of the session we already done, and upcoming session definitely all sessions we are recorded, and that all sessions we are uploading on the YouTube channels. So you can also check these sessions when you implement budget in your organization. So this upcoming time, this session will also recorded. This session is recorded that will upload in the YouTube channels. So you subscribe our YouTube channels. That will be very beneficial for you. If अगर आपने कोई एक सेशन छूट भी गया है upcoming time में, अगर या पीछे में छूट भी जाता है, तो no worry about that. You can go to our YouTube channel and you can check that, and notification will come if you are subscribing our YouTube channel. So use the budget in your organization, make the profit higher side. Okay, so thank you very much from my, this is over to you, Deepa. Thank you very much from my. Thank you so much, Mr. Bhagwati. It was pleasure having the additional information onto the budget and the control with Tally Prime. Yes, as like completely on today's webinar, the complete discussion was like how beneficial is this. So the thing is, like, now it is all your turn. If you have any doubts onto this particular topic, request you to please visit us, please do connect us. Well, before like ending up the session, or I have very important information, let me just update that. Basically, Rajlakshmi Solutions Private Limited is into many different softwares, many different services, and many different solutions, as well as customization. So this is something like we just support the SMEs to confidently run up the business by helping them to set up the, and we always support in engaging the complete organization management with the people management stuff also, and we always engage the organizations as well with softwares and services. So we are into SAP Business One, we are into Tally Prime, we are into Bittrex CRM, and we are into Skill India, and we are into HR systems and services, as well as digital marketing services. So basically, HR system and digital marketing system has become really on boom in this pandemic scenario. So if you really have any doubts or any questions, please connect us. The details have been already forwarded onto the chat box. So click it now itself. Once we disconnect the call, you will not be able to access the chat. And the next thing is, if you have any suggestions onto topics, request you to please suggest us the topic. The highly demanded topic will be presented as
tonight's webinar. So you can connect us through mail or through chat or through the WhatsApp number displayed onto the website and the social medias as well. So do connect us, take the right opportunity. Thank you so much for all your presence on today's webinar. A special thanks to a special thanks to Ms. Priyanka and Mr. Krishna. You really did a very good job today. Your presentation was pretty cool today. And thank you, Mr. Bhagwati, for your wonderful add-on. And thanks to complete spectators here who took your time and gave us a space to speak on to very important topic and speak about the Rajalakshmi's movement. So request you to please subscribe our channel and do follow our channel to know all the offers and the movement of Rajalakshmi Solutions Private Limited. Thank you so much, everyone. Stay tuned and see you soon in the next webinar. Stay confident and stay safe. Thank you and see you soon. Bye-bye.